spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's not going to buy much oil from Russia. پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، امریکی صدر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خبردار کر دیا۔ پاکستان اور بھارت ہمسایہ جوہری طاقتیں ہیں، دونوں ملکوں کی جنگ رکوا کر خطے کو بڑی تباہی سے بچایا، تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائیں۔ بھارت اب روس سے مزید تیل بھی نہیں خریدے گا۔ آئندہ ماہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے ارکان پارلیمان اور سیاسی قیادت کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو۔ ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان اجلاس میں غیر معمولی اور تاریخی فیصلے، صوبے بھر میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ہر ضلع میں وسل بلور سیل بنایا جائے گا، امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کی ہدایت، انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی عائد، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی، سوشل میڈیا پر شرانگیزی اور نفرت پھیلانے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ، پنجاب کے عوام انتہا پسندوں اور غیر قانونی تارکین وطن کی فوری اطلاع 15 پر دیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان رابطہ، ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ اور فلسطین سمیت خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کا خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں جاری، سیکورٹی فورسز نے دالمندین میں فتنہ الہندوستان کی تشکیل کا قلع کما کر دیا، بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گرد ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے جن کی مسلسل فضائی نگرانی کی گئی، سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں نے بربریت کی انتہا کر دی، بھتہ نہ دینے پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر 6 مقامی افراد کو زندہ جلا دیا، سیکورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر خارجیوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع۔ یہ کیسا اسلام اور کیسا جہاد ہے کہ معصوم افراد کو ذاتی اناج پر قتل کیا جائے، فتنۃ الخارج کے درندوں سے نجات دلائی جائے، میر علی کے عوام کی حکومت سے درخواست۔ سیکورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے شاہی تنگی جنگل میں موجود خارج کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا مکمل صفایا کر دیا، کارروائی کے دوران خارج اور فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، ایک خارجی جہنم واصل، متعدد زخمی خارجی علاقے سے فرار، خارج کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ بھارتی پولیس کے نام نہاد پروپیگنڈے پر پنجاب پولیس کا منہ توڑ جواب، ٹینک شکن ہتھیار بذریعہ ڈرون بھیجنے کا بھارتی پولیس کا دعویٰ مذاق کا خیز قرار، پاکستانی انٹیلیجنس اداروں پر بھارت میں اینٹی ٹینک ویپن سسٹم بھجوانے کا الزام منگھڑت، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہے، کیا بی ایس ایف اور بھارتی پولیس سو رہی تھی؟ بھارت اپنی روایتی اور بے بنیاد چالوں سے باز نہیں آ رہا، کبھی کھلونوں غباروں تو کبھی کبوتر کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دیتا ہے، کھناؤ نے پروپیگنڈے کے لیے بھارتی ایجنسیوں نے سکھ افسر کو استعمال کیا، اے ایس پی راجندر میگھوار۔ پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کی بڑی کارروائی، تقریباً $972 ملین مالیت کی منشیات پکڑ لی، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاک بحریہ کے افسران اور اہلکاروں کی ستائش، رائل سعودی بحریہ اور امریکی سینٹکام کی جانب سے بھی پاک بحریہ کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف، یرموک جہاز سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 کے تحت آپریشن میں مصروف تھا،
پاک بحریہ میری ٹائم سیکورٹی غیر قانونی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی کارپوریشن امبرین جان کی الوداعی ملاقات. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود. وزیر اعظم نے سیکرٹری اطلاعات و نشریات کی خدمات کو سراہا. مارکہ حق کے دوران پاکستان کا بیانیہ عالمی سطح پر بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر خراج تحسین. وزیر اعظم کا امبرین جان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن امبرین جان کی خدمات کے اعتراف میں الوداعی تقریب. وزیر اطلاعات سمیت ملک بھر سے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ افراد کی شرکت. سیکرٹری انفارمیشن امبرین جان نے 35 سال دیانتداری، اعتماد، وقار اور پیشہ ورانہ انداز میں ملک کی خدمت کی. مارکہ حق میں بہترین خدمات کے اعتراف میں وزارت اطلاعات کے 6 لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. میجر عارف جان شہید کی بیٹی امبرین جان بھی ایوارڈ لینے والوں میں شامل ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ. نائب وزیر اعظم کی دعوت پر پولینڈ کے ہم منصب کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی تمام جہتوں پر بات چیت ہوگی. پاکستان اور پولینڈ کے نائب وزراء اعظم مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے. پولینڈ کے نائب وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. پاکستان پولینڈ کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. افغانستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے پاکستانی موقف کے عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی پذیرائی. افغانستان میں 6000 سے 6500 فتن خارج کے دہشت گرد نیٹو کا چھوڑا ہوا جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. ٹی آر ٹی کی جانب سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کا حوالہ. پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان افغانستان میں موجود فتن خارج کے دہشت گردوں کو کنٹرول کریں. الجزیرہ. پاکستان کی غزہ امن معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزی کی شدید مذمت. اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں ہونے والے امن معاہدے کے برعکس ہیں. غزہ پر اسرائیلی حملے فوری طور پر بند کیے جائیں. عالمی برادری غزہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور فلسطینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے. پاکستان ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ. وزیر داخلہ موصف کا بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا اعلان. بلٹ پروف گاڑیاں فوراً بلوچستان بھیج دی جائیں گی. بلوچستان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. محسن نقوی. خیبر پختونخوا حکومت کے انکار کے بعد وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے مذکورہ گاڑیاں بلوچستان کو دینے کی درخواست کی تھی. پاکستان کی معیشت مضبوط بنیادوں پر استحکام کی جانب گامزن ہے. افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کی پیشگوئی. غیر ملکی سرمایہ کار ٹیکنالوجی، توانائی اور صنعت کے شعبوں میں مواقع سے فائدہ اٹھائیں. حکومت کی جانب سے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے گفتگو. پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. سیلاب کے دوران مثالی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کیا گیا. خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا لیکن متاثرین کی مدد کے لیے گھر سے کوئی نہیں نکلا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے کیے گئے وعدے کو 26 دن کی قلیل مدت میں پورا کیا. پنجاب میں سیلاب زدگان کو شفاف طریقے سے امدادی رقوم مل رہی ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ملتان میں تقریب سے خطاب. مریم اورنگزیب کا مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں پوسٹ گریجویٹ کالج میں قائم متاثرین بحالی کیمپ کا بھی دورہ. متاثرین میں نقد رقوم اور خصوصی کارڈ تقسیم کیے. سندھ میں کچے کے 71 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے. 282 ڈاکوؤں نے خود کو پولیس کے سامنے رجسٹر کرایا. آپریشن کے دوران 209 سے زائد ہتھیار برآمد کر لیے گئے. ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں نے امن قائم رکھنے کا عزم دہرایا. لوگ امن کے قیام میں پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ کا تقریب سے خطاب.
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बीच बहड़ा कत्लेआम, खित्ते और तारीख के सबसे खौफनाक जंगी जराइम में से एक। भारतीय फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 शहरियों को शहीद किया था। 32वीं बरसी पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बीच बहाड़ा के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत, हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा, भारतीय फौज के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ। गजा में इजरायली फौज की अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। सयूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, मजमूई तादाद 100 हो गई, 315 जख्मी। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा जंग बंदी बरकरार रखने की भरपूर उम्मीद है, ताहम हमास को ताउन करते हुए गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 6 अफराद हलाक, 18 जख्मी। रूसी हमले में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद मुल्क के अक्सर इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। यूक्रेन के सदर की जानिब से हमले की मजम्मत। ज़ेलेंस्की का यूरोपीय यूनियन से रूस के खिलाफ फौरी तौर पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 94 रन, 23 रन की बढ़तरी। बाबर आजम 49 रन पर नॉट आउट। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका के 71 रन की बढ़तरी के साथ 404 रन, 235 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद मेहमान टीम का कमबैक। आखिरी 2 विकेटों ने मजमूई स्कोर में 169 रन का इजाफा किया। मेथोसामी के 89, कागुएसो और रबादा के 71 रन सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी क्रिकेटर आसिफ आफरीदी का अपने पहले मैच में मुनफरिद एजाज, 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 38 साल आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 से ज्यादा विकेट्स लेने वाले मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेट्स हासिल की थी। और पाकिस्तान के नोमान अली की ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में करियर बेस्ट दूसरी पोजीशन। लाहौर टेस्ट में 10 विकेटें हासिल करके 853 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 4 दर्जे तरक्की पाई। 850 पॉइंट्स का संग मील अबूर करने वाले पाकिस्तान के 7वें बॉलर बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का नरेंद्र मोदी को इंतबाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत हमसाया जौहरी ताकतें हैं। दोनों मुल्कों की जंग रुकवाकर खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया। उन्होंने कहा कि तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाएं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा कि आइंदा माह चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that
trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's not going to buy much oil from Russia. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान का तीसरा गैर मामूली इजलास हुआ। इजलास में रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले किए गए। पंजाब में इंतहा पसंद जमात और सूबे में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ पुलिस हेल्पलाइन में खुसूसी सेल, सूबे में लाउड स्पीकर एक्ट की सख्त और लाजमी नफाज, हर जिले में विसल ब्लोअर सेल के क़याम, सूबे में माफिया, बदमाशी और डाला कल्चर के खात्मे, अमन कमेटीज़ को फाल और मौसर बनाने समेत मुतअद्दिद फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी क़याम पजीर गैर मुल्कियों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त पाबंदी होगी। इजलास में वाज़ेह किया गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं। ये ऑपरेशन किसी फिरके या जमात के खिलाफ नहीं। सूबे की ज़िला इंतजामिया गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ रोजाना रिपोर्ट्स देंगी, जिनमें गैर मुल्कियों के कारोबार और रिहाइश से मुतालिक डाटा होगा, जबकि बैनुल अक़वामी बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने की भी रिपोर्टिंग होगी। इजलास में वाज़ेह किया गया कि अवाम गैर कानूनी रिहायशियों को मकान, दुकानें किराए पर हरगिज़ न दें, वरना किरायादारी और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर पीका एक्ट लागू होगा। सूबे में सोशल मीडिया पर शरअंगेजी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि सूबे में गैर कानूनी इज्तिमात और जबरदस्ती बाजार बंद कराने पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके दालबंदी में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये दहशतगर्द एक कार में पनाह लिए हुए थे, जिनकी मुसलसल फिजाई निगरानी की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौजू वक्त पर दहशतगर्दों को उनके ठिकाने पर मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ये अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राब्ते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के इकदाम जारी रहेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेज की बाजोड़ के इलाके में खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजी दहशतगर्दों के ठिकानों और सुरंगों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें खारजी जहन्नुम वासिल हो गया। मुतादिद जख्मी खारजी दहशतगर्द इलाके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान खारजी दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा, गोला बारूद और मुवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। फितनल खारिज के दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर शिमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में 6 मकामी अफराद को जिंदा जला दिया। फितनतुल खारिज ने बर्बरियत की इंतहा करते हुए गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ी के अंदर मौजूद 6 निहत्ते और मासूम शहरी जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर खारजियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फितनतुल खारिज की इस बर्बरियत पर मीर अली के अवाम ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि हमें इन दरिंदों से निजात दिलवाई जाए। ये कैसा इस्लाम और कैसा जहाद है कि इस दरिंदगी से मासूम अफराद को जाती अनात पर कत्ल किया जाए। पाक बहरिया ने शिमाली बहेरा अरब में इंसदाद मुनशियात की बड़ी कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक बहरी जहाज यरमूक ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर मालियत की मनशियात बरामद की। जहाज सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत ऑपरेशन में मसरूफ था। ये कामयाबी पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के अज़्म की अक्कास है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले की पेशावराना महारत और लगन को सराहा। पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अमन के फ़रोज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेवी के जहाज यरमूक की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और यरमूक के अमले को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। सदर ममलकत का कहना था कि पाकिस्तान नेवी का किरदार आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और मुस्बत तशख़्ख़ुस को मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहेरा अरब में PNS यरमूक की बड़ी कार्रवाई पर पाक बहरिया की तारीफ की है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अरबों रुपए मालियत की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाना काबिल सताइश है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, अताउल्लाह तार, राना मुबशर इकबाल, मुशीर, वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, अरकान पार्लियामेंट पीर साबिर शाह, कैप्टन सफदर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मुश्ताक मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान ने अलविदाई मुलाकात की। सेक्रेटरी इत्तलात ने अपने 35 साला करियर में मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ आला ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अमरीन जान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए मार्के हक के दौरान पाकिस्तान का बयानिया बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर करने पर उनकी कारकर्दगी को खास तौर पर सराहा। वज़ीर आज़म ने उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मोहतरमा अमरीन जान अपने करियर के दौरान वजारत इत्तलात और नशरियात में मुतअद्दिद अहम ओहदों पर फाइज रहीं। उन्होंने हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ढाका में प्रेस काउंसलर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल PID, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग, डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान और मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के तौर पर खिदमात सरंजाम दी। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अमरीन जान की भारत के खिलाफ हालिया मार्के हक में बेहतरीन खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज के एजाज से भी नवाजा गया। अमरीन जान सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशरियात। अमरीन जान 1965 की पाक भारत जंग के वागा महाज के हीरो मेजर आरिफ जान शहीद की साहबजादी हैं। अमरीन जान ने मीडिया और नशरियात के शोबे में कई महाजों पर काम किया, जिसमें बैरूनी पब्लिसिटी, कौमी नशरियाती इदारों की फ़आलियत और अवामी शऊर उजागर करने की हिकमत अमली शामिल हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अमरीन जान ने 35 साल दयानतदारी और पेशावराना अंदाज में मुल्क की खिदमत की। मार्का हक में बेहतरीन खिदमात पर मेजर आरिफ जान शहीद की बेटी को भी अवार्ड से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान की खिदमात के इतराफ में उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में वजीर इत्तलात और नशरियात समेत मुल्क भर से पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अमरीन जान की इंफॉर्मेशन ग्रुप में बतौर सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन में पेशावराना अमूर की अंजाम दही काबिल तहसीन है। सही मालूमात की फराहमी यकीनी बनाना निहायत मुश्किल काम है। अमरीन जान ने PTV की बेहतरी और माली मुश्किलात से निकालने और इदारे में इस्लाहात के लिए इकदामात की। मार्काए हक के दौरान मुल्क के बियानिए की जंग PTV ने लड़ी और दुनिया को मनवाया। उनकी पेशावराना खिदमात को याद रखा जाएगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आपने ना सिर्फ बड़े लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, बल्कि आपने स्टैंडर्ड एंड यू सेट द बार एंड स्टैंडर्ड वेरी हाई। सो whoever comes in your place has very big shoes to fill. It's about determination, it's about resolve, and it's about the will to do. ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव किया है कि डिटर्मिनेशन हो, रिजॉल्व हो, विल टू डू हो, तो one can do wonders and one can do miracles. And this is a testament, all these reforms that we put in place. सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान ने कहा कि पूरी ईमानदारी और नेक नीयती से पेशावराना जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की। इज्जत और वकार देने पर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। It was really lovely working here. मैंने बांग्लादेश में 6 साल काम किया, तो जब मैं वहाँ से जाने लगी तो मैंने कहा कि these were the happiest years of my life. रेडियो में गई तो जब जा रही थी तो मैंने कहा these were the happiest years of my life. EP विंग में भी मेरे दिल का हिस्सा उधर है, और PTV में भी हमेशा आपका साथ मेरे साथ रहेगा, क्योंकि all of you are a part of my heart now.
वजारत इत्तलात और नशरियात के एडिशनल सेक्रेटरी इशफाक खलील ने कहा कि अमरीन जान की शख्सियत शफकत से भरी है। उन्होंने एतमाद और वकार से पेशावराना अमूर चलाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन फातिमा शेख ने कहा कि अमरीन जान की क़यादत में पाकिस्तान सैटेलाइट, डिजिटल और PTV न्यूज के लिए बहुत काम किया। इनकी सरपरस्ती में इदारे में बेहतरी आई। डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सोनल पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन फरहत अब्बास जंजुआ ने कहा कि अमरीन जान ने इदारे की बेहतरी के लिए खातिर-खा इक़दामात किए। इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डायरेक्टर न्यूज डॉक्टर हारून इलाही तूर ने कहा कि फैसला साजी में मुश्किल तरीन हालात में मैडम सेक्रेटरी अमरीन जान से रहनुमाई ली। PTV की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए मैडम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डायरेक्टर करंट अफेयर्स चौधरी सलीम ने कहा कि वजीर इत्तलात की क़यादत में MD PTV और उनकी टीम ने पाकिस्तान टेलीविजन का नक्शा बदल कर रख दिया। डायरेक्टर प्रोग्राम सैफुद्दीन ने कहा कि मैडम सेक्रेटरी की इदारे की बेहतरी के लिए इक़दामात नाकाबिले फरामोश हैं। डायरेक्टर IT नौशीन शकूर ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए MD PTV ने हमेशा रहनुमाई की। डायरेक्टर इंजीनियरिंग जुल्फकार अली बाबा खेल ने कहा कि पिछले 1 साल में PTV में जिद्दत आई। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात को तोहफे भी पेश किए गए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में ख़वातीन की OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया और सिनफी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार पर बात की। उन्होंने इस हवाले से मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए OIC के साथ करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर शफकत अली खान ने नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शफकत अली खान की खिदमात को सराहा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौसर अंदाज में उजागर करने पर उनकी कारकर्दगी की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने नामजद सफ़ीर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में ज़रूरी और नकदावर फसलों के बारे में काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कपास की पैदावार को दरपेश चैलेंजेस और अहम नकदावर फसलों की मजबूती सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, सप्लाई चेन में बेहतरी और तहकीक के फ़रोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमती और निजी शोबे के दरमियान बेहतर ताउन पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम शराकतदारों के साथ करीबी मौसर रवाबित के जरिए मुजव्वज़ा इस्लाहात के नफाज को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि चंद माह में 1,80,000 से ज़्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। ट्रेनिंग के बाद 75,000 से ज़्यादा हुनरमंद नौजवानों ने रोज़गार हासिल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सनअती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने की भी हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री प्रवास कार्ड जारी किए जाएंगे। इजलास में पंजाब में पहली मरतबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम करने का भी फैसला किया गया। इजलास को यह भी बताया गया कि आइंदा साल 1 अप्रैल तक 2100 से ज़्यादा देही ख़वातीन की IT ट्रेनिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। आलमी ज़राई ब्लॉग ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है कि अफगानिस्तान से फायर बंदी का दारोमदार सरहद पार दहशत गर्दी रोकने पर है। सऊदी अरब, तुर्की और कतर की जंग बंदी के लिए कोशिशों से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद हासिल हुई है। वज़ीर दिफा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ के बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू की अहमियत के पेश नज़र गैर मुल्की मीडिया इसे उजागर कर रहा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंदी मुआहदे का इन्हिसार अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों को लगाम डालने पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर के दस्तखत किए गए मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि हमारे पास उस वक्त तक जंग बंदी मुआहदा है जब तक कोई खिलाफ वर्जी न हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम ने अमन की बहाली के लिए पाक फौज के इक़दामात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हालिया सरहदी दरअंदाजियों पर अफगानिस्तान को भरपूर और मौसर जवाब दिया है। अवाम का कहना है कि आर्मी चीफ और हुकूमत की वजह से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। दुनिया की चकम फौजी कुव्वत दे नागा वाहिद पाकिस्तान दे और दागे वाज़ेह सबूत द पाकिस्तान हिंदुस्तान द जंग दा खबर हुई और दागे ने वस चकम दा जमंगा पे मुल्क के या पे बॉर्डर बांध के दर अंदाजिया ने वशवले दागे मुवसर जवाबुन और दागे पे मुवसर कार्रवाई ने वशवले और आर्मी चीफ और जमंग द मौजूदा गवर्नमेंट द वजह पटोल दुनिया की द पाकिस्तान चा रकम इमेज बहाल शो न दा तारीख की चरता न बहाल शो। अफगान सरजमीन की तरफ से
जो TTP को वहाँ पे उन्होंने पनाह दी है, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया इस वक्त जो है इन्होंने जो है अफगानिस्तान में TTP के ठिकानों पर जो है स्ट्राइक जो किए है। तो अगर आप हिंदुस्तान की इमा पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, तो पाकिस्तान चाहता है कि हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हमने हजारों जानों की नुकसानात उठाए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं और इस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, तो ये सबसे अच्छा बेहतर है ताकि ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। उनको खुद चाहिए कि अपने मुल्क के जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको जो है वो खुद खत्म करें। ASP राजेंद्र मेघवाल ने कहा है कि भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का पंजाब पुलिस ने नोटिस लिया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों पर भारत में एंटी टैंक वेपन सिस्टम भिजवाने का इल्जाम बदनीयती पर मबनी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक भारत अपनी रिवायती और बेबुनियाद चालों से बाज नहीं आ रहा। भारत कभी खिलौनों, गुब्बारों और कभी कबूतर को ISI का एजेंट करार देता रहा है। भारतीय पुलिस का टैंक शिकन हथियार बजरिया ड्रोन भेजने का दावा मजाक का खेस है। शहरी गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे में ना आए और इदारों पर मुकम्मल एतमाद रखें। भारत की एक मुस्तकिल आदत बन चुकी है कि इस तरह की मन घड़त कहानियाँ बनाकर उसकी इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर करना। और दूसरी बात ये कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें माजी में भी मिलते हैं कि कभी भारत जो है वो बच्चों के खिलौनों को पेश करता रहा है, कभी वो हवा से उड़ के आने वाले गुब्बारों का जिक्र करता रहा है, तो कभी जो है वो किसी कबूतर को गिरफ्तार करके पकड़ के उसको ISI के एजेंट के तौर पर भी साबित करता रहा है। और तीसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार इन्होंने एक सिख अफसर को इस्तेमाल किया है इस फेक मनफी प्रोपेगेंडा को फ़रोग़ देने के लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गोरगेज, रुकन कौमी असम्बली मीर गुलाम अली टालपुर, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, सिंध असम्बली के रुकन साजिद झोंकी और कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और शहर में जारी अवामी फलाही और तरक्याती मनसूबों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी लागत में नुमाया कमी मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना ने जर्मन सरमायाकारों को टेक्नोलॉजी, तवानाई और सनत के शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम, माली और बैरूनी खातों में बेहतरी और रुपए की कदर में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर आ गए हैं। CGTN अमरीका को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF के तौसीई मालियाती प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल माहिदा तय पा चुका है। उन्होंने बताया कि मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई है। पाकिस्तान को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के जनूबी एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टरेट के तौर पर 2025-2027 के लिए मुतफ़क्का तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाब शारजा में मुनक्किदा वेपा की जनरल असम्बली और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के दौरान किया गया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने की। इस मौके पर कैसर अहमद शेख ने वेपा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक रोमानिया की फिजाइया के हेडक्वार्टर्स आमद पर फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रोमानिया की फिजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल बारबोई से मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फिजाइया के दरमियान ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। रोमानिया की फिजाइया के सरबराह ने हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फिजाइया की कामयाबियों में आला पेशेवराना महारत की तारीफ की। दोनों एयर चीफ्स ने मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई चैलेंजेस से निपटने के लिए पायदार ताउन के लिए मजबूत इदाराजाती मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक किया। मुल्तान में सैलाब मुतासिरीन की बहाली की तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने बदतरीन सुपर फ्लड का मुकाबला मिसाल क़यादत और मजबूत अज़्म के साथ किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रावी, सतलुज और चिनाब में आने वाला सैलाब सूबे की तारीख का बदतरीन फ्लड था, मगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी टीम के हमरा हर महाज पर डट कर मुकाबला किया।
उन्होंने कहा कि सैलाब की तैयारी, रेस्क्यू, मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली और रिलीफ सब कुछ मरीम नवाज की निगरानी में मुकम्मल हुआ। वजीर आला पंजाब ने अपनी मेहनत से, आपकी मदद करने की नीयत से आप सबको आज यहाँ लोगों को 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 12 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 6 लाख रुपया मिल रहा है। और किस तरह मिल रहा है? एक शफाफ तरीके से मिल रहा है। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने 27 अजला में 72 रिलीफ कैंप साइट्स कायम की और अब तक 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 20 लाख मवेशियों को पहली मरतबा कामयाबी से बचाया गया। आप सबको मुबारक है कि आपकी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है। आज अल्लाह ताला के फजल से हम सब के लिए खुशखबरी है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ है, जिसका हर कदम जब उठता है तो वो पाकिस्तान की इज्जत के लिए उठता है, पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफे के लिए उठता है। और अल्लाह ताला ऐसी कमाल तरीके से उनका साथ दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है कि हर जगह जहां जाते हैं वहां पाकिस्तान के लिए बाइसे इज्जत बनते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान एक भी वबाई बीमारी नहीं फैली। पंजाब भर में 1000 फील्ड क्लिनिक्स और फील्ड अस्पतालों के जरिए 15 लाख अफराद का इलाज किया गया। सीनियर सूबाई वजीर ने अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतजामिया की खिदमात को भी सराहा और कहा कि हर इदारे ने एक टीम बनकर काम किया। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा कि सिर्फ मुल्तान डिवीजन में अब तक 483 मुतासरा खानदानों को 21 मिलियन रुपए की अदायगी मुकम्मल की जा चुकी है। तकरीब के इख्तिताम पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुतासरा खवातीन के पास गईं, उनसे मिली, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया और अमदादी रकूम और चेक तकसीम किए। उनके हमरा दीगर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की क़यादत में काबीना कमेटी ने अलीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में कायम मुतासरीन बहाली कैंप का दौरा किया और मुतासरीन में नकद रकूम और खुसूसी कार्ड तकसीम किए। बहाली कैंप में मुतासरीन सैलाब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि 50,000 रुपये नकद रकम के अलावा मुतासरीन को नुकसानात के सर्वे के मुताबिक पंजाब बैंक के खुसूसी कार्ड दिए गए हैं, जिनसे वो मरहलावार इमदादी रकूम हासिल कर सकेंगे। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, काजिम बीरज़ादा, सुहेब भरत और राना सिकंदर हयात भी सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के हमरा थे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने सनाए तकाइची को जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया फॉर्म एक्स पर खातून अव्वल ने कहा कि सनाए तकाइची का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना ख़वातीन लीडरशिप में अहम संगमीद और जापान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। तवक्को है कि नौमुंतखब जापानी वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मानंद जमहूरियत और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। सिंध के कच्चे के इलाके के डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान किया है। रिपोर्ट करेंगे शिराज अली डाहरी। सिंध के जिला शिकारपुर में आज अमन, रियासती अमलदारी और कानून की बालादस्ती के हवाले से अहम दिन था। गड़ी तेगो ऑपरेशन के बाद पुलिस हेडक्वार्टर शिकारपुर में तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 71 डाकुओं ने हथियार डालकर कानून के सामने सरेंडर किया। ये तकरीब सिंध हुकूमत की रजाकाराना सरेंडर पॉलिसी के तहत मुनक्किद हुई, जिसे 16 अक्टूबर को सूबाई काबीना ने मंजूर किया था। तकरीब में सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब समेत सिक्योरिटी इदारों और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान शिरकत की। तकरीब में 71 इश्तिहारी डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का फैसला किया, जिनमें वो जराइम पेशा अफराद भी शामिल थे, जिनके सरों पर इनामात मुकर्रर थे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अवाम अमन चाहते हैं और पुरअमन जिंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। हम आपको बेहतर शहरी की जिंदगी देना चाहते हैं। कच्चे के लोगों को नौकरियां दें, बेनज़ीर कार्ड की सूरत में या उस टाइप की कोई स्कीम दें। यहाँ की हमारी जो ख़वातीन हैं कच्चे की,
वेटनरी सेंटर्स यहाँ पर बनाए हम लोग, ताकि आपके जो माल मवेशी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, आप बिजनेस करें। इस मौके पर वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि अमन व तरक्की की 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही वो खुद करेंगे, जबकि इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की क़यादत मुतल्लिका कमिश्नर के सुपर्द होगी। उन्होंने खवातीन की फलाह के लिए वुमेन सेंटर्स, बच्चों के लिए तालीम व सेहत के मंसूबों का भी ऐलान किया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेंबर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध पुलिस, रेंजर्स और फौज की मुश्तरका काविशों से कच्चे के बेशतर इलाके डाकू कल्चर से पाक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल में 171 डाकू मारे गए और 421 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शिकारपुर। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म राडोस्ला सिकोर्सी पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम जहतों पर बातचीत मुतवक्के है। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तान ने गजा में इजरायली फौज की जानिब से हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में बेशुमार फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये हमले शर्म शेख अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा किया ताकि इसराइल के इन खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके और फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इआदा करते हुए इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज बीज पहाड़ा कत्लेआम की 32वीं बरसी मनाई गई, जो खित्ते में तारीख के सबसे खौफनाक जंगी जराइम में से एक है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने 22 अक्टूबर 1993 को जिला इस्लामाबाद के इलाके बीज पहाड़ा में पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग करके 50 से ज्यादा निहत्ते शहरियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। मुजाहिरीन श्रीनगर में दरगाह हजरत बल का फौजी मुहासरा खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। शोहदा के अहले खाना 32 साल गुजरने के बावजूद आज भी इंसाफ से महरूम हैं, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने किसी भी मुजरिम को सजा नहीं दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में बेज पहाड़ा के शोहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हक के खुदरादियत के हुसूल तक अपनी जिदोजहद जारी रखने के अज़्म का अदा किया। हुर्रियत तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों के हाथों कत्ले आम के तमाम वाक़यात और दीगर मसालिम की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम एक ख़त में खबरदार किया है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का मुसलसल फौजी कब्जा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। ख़त में कहा गया है कि इलाके पर भारत के दावे का कोई कानूनी या इखलाकी जवाब नहीं है। भारतीय फौजियों और पैरामिलिट्री एहलकारों ने आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों को निशाना बनाने के लिए राजौरी, पूंछ, किश्तवाड़, डोडा, ओधमपुरा और खटुआ के अजला में मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखें। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अमन मुआहदे के बाद शहीद होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। हमास ने मजीद 2 जर्रवालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। जंग बंदी के आगाज़ से अब तक हमास की जानिब से इसराइल को मजमूई तौर पर 15 लाशें वापस की जा चुकी हैं। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि सदर ट्रंप के गजा मनसूबे पर अमल दरामद तवक्को से बेहतर हो रहा है। खुसूसी एलची बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि गजा जंग बंदी बरकरार रहने की भरपूर उम्मीद है, ताहम हमास को ताउन करते हुए गैर मुसल्लह होना पड़ेगा। JD वैंस ने कहा कि अमरीका और इसके शराकतदार सलामती और इंसानी इमदादी निज़ाम कायम करने पर तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि तवील मुद्दती पायदार अमन मुमकिन बनाया जा सके। इसके लिए मुस्तकिल कोशिश और निगरानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गजा से जर्रमालियों की लाशें निकालने के लिए पेशरफ्त हो रही है। रूसी अफवाज की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 6 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के दारुलहुकूमत केव और अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। मकामी हुकाम के मुताबिक रूसी अफवाज ने यूक्रेन के तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया। मुल्क के कई हिस्सों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस सख्त सर्दियों से कबल यूक्रेन के बिजली के निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश कर रहा है। युगांडा से खबर आपको देंगे। युगांडा में बस हादसे में 63 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क युगांडा में तेज़ रफ्तारी के बायस 2 मुसाफिर बसें आपस में टकराने से 63 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा कंपाला गुलो हाईवे पर पेश आया जब 2 मुखालिफ समतों से आने वाली बसों ने ओवरटेक करने की कोशिश की। हादसे में 2 छोटी गाड़ियां भी जख्मी आईं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल ख़ातिर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान ज़राई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कानून व इंसाफ के वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक ने जिनीवा में बैनुल पार्लिमानी यूनियन की 151वीं असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने आलमी अमन, सलामती और इंसाफ पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले मुबाहिसों और इजलासों में हिस्सा लिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने इंसदाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में मुशावरती ग्रुप के 19वें इजलास में भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह की प्रोग्राम आवाज़ 2 की तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद अवामी मसाइल के हल और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। We should always try to pave way to make life easy for them. जब right man for the right job, right person for the right job होगा तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। रियासत पाकिस्तान एक आइनी निज़ाम के ज़ेरे असर जो है ये चलती है। आइन में किसी भी कानून को परखने का एक ही मयार है कि आया वो शरीयत से मुतसादिम है, आइन से मुतसादिम है या नहीं। और जहाँ पे शरिया की बात है तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वही एक अथॉरिटी है, एक फोरम है जहाँ से ये आपको सनद मिलनी है कि ये कानून शरिया से मुतसादिम है या कंप्लायंट है। वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना बिलाल असरकियानी की कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात हुई है। मुलाकात में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और दीगर अहम सरकारी इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर बिलाल असरकियानी ने शफाफियत और पॉलिसीज़ के तसलसल के अज़्म का अदा किया। उन्होंने शराकतदारी और तरक्याती मनसूबों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ममलकत ने कारोबारी वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री दी। उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज मंजूर कर लिया है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि गंदम की कम अज़ कम कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। किसानों को फी एकड़ 1 बोरी DAP और 2 बोरियां यूरिया फराहम की जाएंगी, जिसके लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मुख्तस किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़रिए आमदनी पर ट्रिपल टैक्स का निफाज फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि कोई भी कौम ख़वातीन को उनके मर्द हम मनसूबों के बराबर मौक़े और सहूलियात फराहम किए बगैर तरक्की की नई मनाजिल तय नहीं कर सकती। कोयटा में UN विमेन के वफ़द से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बलूचिस्तान की ख़वातीन सलाहियतों में किसी से कम नहीं, लिहाजा ज़रूरी है कि उनको तमाम सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नर बलूचिस्तान ने खातून मोहतसिब की खाली असामी पर मेरिट पर तैनाती की यकीन दहानी कराई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडरी ने पेशावर के तरनाब फार्म में वाक़ आलमी शहद मार्केट का दौरा किया। गवर्नर ने शहद के मुख्तलिफ अक़साम और उनकी तैयारी के मराहिल की तफसीली जायज़ा लिया। हनी बी एसोसिएशन के सदर शेर जमान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को शहद के कारोबार, इसकी पैदावार और आलमी मंडियों तक रसाई के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का अहम इजलास पेशावर में हुआ, जिसमें सूबे में गंदम, आटे और चीनी के दस्तयाब ज़खायर, कीमतों और तरसील की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को ख़त लिखा जाए। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मिट्टी 40, तुरबत, लसबेला और छोर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। तीसरे दिन पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। पाकिस्तान को मैच में 23 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। इमामुल हक 9,
अब्दुल्ला शफीक 6, शान मसूद 0 और सऊद शकील 11 रन बना सके। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन पर नॉट आउट हैं। जनूबी अफ्रीका के साइमन हार्मर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी के साथ 404 रन स्कोर किए थे। मेहमान टीम ने 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स शुरू की तो 235 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए। इस मौका पर जनूबी अफ्रीका के टेलेंडर्स ने शानदार बैटिंग से न सिर्फ पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म की बल्कि अपनी टीम को मैच में वापस भी ले आए। आखिरी 2 विकेटों ने मजमूई स्कोर में 169 रन का इजाफा किया। मोतुसामी ने करियर बेस्ट नॉट आउट, नवासी और कागिसो रबादा ने करियर बेस्ट 71 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी ने 6, नौमान अली ने 2, शाहीन शाह अफरीदी और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 333 रन बनाए थे। सीरीज में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी क्रिकेटर आसिफ आफरीदी ने अपने पहले मैच में ही मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में डेब्यू करने वाले स्पिनर आसिफ आफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 या इससे ज्यादा विकेटें लेने वाले मुअम्मर तरीन क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की थीं। आसिफ आफरीदी ने 38 साल 302 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान के नौमान अली आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में करियर बेस्ट पोजीशन पर आ गए हैं। नौमान अली ने रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। उन्होंने लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें हासिल करके अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाया। नौमान अली 29 पॉइंट्स के फर्क से भारत के जसप्रीत बुमराह से पीछे हैं। नौमान अली 853 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के 7वें बॉलर बन गए जिन्होंने 850 पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। और कौमी क्रिकेट टीम के स्पिनर आसिफ आफरीदी ने कहा है कि रावलपिंडी टेस्ट की पिच तब्दील हो रही है। 170 से ज्यादा का हदफ दिया तो पाकिस्तान के मैच में जीत की उम्मीद है। रावलपिंडी स्टेडियम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ आफरीदी ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। दोनों ने क्रीज पर मौजूदगी से रन्स की उम्मीद बहाल की। उन्होंने कहा कि पहले ही सोच रखा था कि डेब्यू टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर मोतुसामी ने कहा कि रबादा के साथ पार्टनरशिप बहुत अहम थी। रबादा ने आखिरी नंबर पर बेहतरीन इनिंग्स खेली। मोतुसामी ने कहा कि रावलपिंडी टेस्ट में बकिया दिनों में पिच ज्यादा चैलेंजिंग होगी। उम्मीद है कि जनूबी अफ्रीका रावलपिंडी टेस्ट में कामयाब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने स्वीप और रिवर्स स्वीप पर काफी काम किया है जिससे फायदा हुआ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 23वें मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 245 रन का हदफ दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बनाए। ओपनर बैटर टॉमी बॉमंट ने 78 रन की इनिंग्स खेली। एलिस कैप्सी ने 38 रन स्कोर किए। चार्ली डीन 26 और सोफिया डंकली 22 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एनाबल सदरलैंड ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।